Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Semester 10, subject Social Science, chapter number 12, India Minerals and Energy Resources Part 1. In this video, we are going to talk about minerals and energy resource. In last video, we talked about the water resources of our country. Uh, So before I start this video, I would like to tell you that like the video, subscribe the channel and press the bell icon and share this video on your social media platform. So minerals are one of the important factor behind the development and growth of the nation. If we talk about the ancient time, then there were limited means and they had limited needs. So requirements of the primitive men were very limited, and due to that, uh, they could not develop as much which we today develop, because today our needs are uncountable, unlimited wants we have, and therefore it is necessary to find out the different kind of ways to use different kind of things, and for that many things which today in past it was not available, and today we are getting that thing very easily. So it is very necessary to understand about the minerals and energy resource of the nation, because it has a very important role behind the development and the growth of the economy of particular nation. So here we are going to talk about India's minerals and energy resource. So this chapter we start with introduction. In that we talk about after that we talk about minerals. Then after classification of the minerals, in that we studied all the minerals particularly. Then after classification of energy, non-conventional energy sources, mineral preservation and the exercise. So these are the important topics of this chapter. So I am always telling you that keep your notebook and pen with you. Whenever you like to note down the things, you should write down that in your notebook and prepare your notes which helpful you in a revision time. Okay, so without wasting time, let's start the chapter. Okay, so as I told that primitive men were limited requirements. He worked only to sustain his life. He was not work for the luxury. Man conquered the heights of evolutions. Minerals have a large role in the human progress, because after the discovery of copper, if we talk about Harappa and Mohenjo-daro civilization of our country, then they use this kind of metals, and by the use of aluminum and copper they formed uh, bronze. So this is the thing of humans, that uh, what is that third metal is known, which mixed by two different kind of metal, uh, alloyed, alloyed it is called. तो मिनरल का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ह्यूमन हिस्ट्री में. अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो वहाँ पे लोग कम थे, उनकी नीड्स कम थी, उनकी वांट्स कम थी. फिर जिस तरह से नई नई डिस्कवरी, नए नए इन्वेंशन होते गए, वैसे वैसे मिनरल का यूज़ भी बढ़ता गया. आज की डेट में जो मिनरल्स जो जितने इम्पोर्टेंट है उतना शायद ही कुछ और होगा.
अब मिनरल्स और एनर्जी जो है दैट इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ बिहाइंड द डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये सब मिनरल्स हैं, इनमें कन्वेंशन और एनर्जी रिसोर्स भी है। और अगर इंडिया में मिनरल्स की हम बात करें तो ये सब लोकेशन है जिसके बारे में हम आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब ये चैप्टर का इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से आपको शॉर्ट नोट आ सकती है और मैप वर्क में यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आ सकता है। तो मिनरल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। मिनरल हम कोई लेबोरेटरी में बनाते नहीं हैं, वो पहले से ही है। The human evolution process is divided into various ages such as Stone Age, Bronze Age, Iron Age and Modern Age, for example Atomic Age। तो हमारा जितना भी ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है उसका जो टाइम पीरियड है उसको ऐसे अलग अलग कैटेगरी में काउंट किया गया। जैसे स्टोन एज में हम स्टोन के इक्विपमेंट्स यूज़ करते थे, ब्रॉन्ज एज में हम ब्रॉन्ज के इक्विपमेंट्स यूज़ करते थे, आयन युग में हम आयन के यूज़ करते थे, और आज का जो मॉडर्न है आज तो हम एटॉमिक एनर्जी भी यूज़ करते हैं। इन स्टोन एज मैन यूज स्टोन्स फॉर हंटिंग बट नाउ ही इज़ ट्रैवलिंग इनटू स्पेस। तो स्टोन एज में हमारी सिचुएशन देखो कि स्टोन को हम हंटिंग के लिए यूज़ करते थे और आज की डेट में हम स्पेस तक पहुंच गए हैं। मैन रिलेशन विथ मिनरल्स इज़ वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। टुडे minerals are considered to be the backbone of economic development of any nation। तो आज की डेट में जो मिनरल्स आपके कंट्री में अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मिनरल है एंड यू नो हाउ टू यूटिलाइज दैट देन योर कंट्रीज इकोनॉमी बिकम द strongest economy of the world। For example, US and Russia have become world's powers only due to proper use of minerals। Both countries are rich in variety of minerals and prosperity. Even though our country has the potential huge reserves of mineral, as long-term dependence and the absence of technical knowledge resulted in lesser economic development। तो जैसे यूएस, रशिया, चाइना में इतने मिनरल रिसोर्सेस है वैसे इंडिया में भी है। बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट 200 ईयर्स तक ब्रिटिश रूल में रहे और टेक्निकल जो नॉलेज है वो हमारे पास कम है, इसलिए ये जितने भी मिनरल्स हैं वो हम 100% यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ योर एजुकेशन दैट व्हेन यू टेक स्किलफुल एजुकेशन देन यू यूज़ ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द country for the benefit of the whole nation as a whole world। So first we have to understand about mineral. What is mineral? So this is the definition: homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure is called mineral। Minerals are found in a varied form in nature, ranging from the hardest diamond to the softest tall. Minerals are usually found in ores। Another mineral is a homogeneous natural, that same is there। डायमंड से लेके हम जो पाउडर यूज़ करते हैं वहाँ तक ये अलग अलग फॉर्म में हमें मिलता है। अब हाउ डू और मिनरल्स फॉर्म, मिनरल की जो माइंस है वो कैसे बनती है? तो इवापोरेट्स व्हेन द वाटर इन सीज और लेक्स इवापोरेट, डिपॉजिट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट आर लेफ्ट बिहाइंड। तो जब ये इवापोरेट होते हैं तो उसके अंदर के जो डिजोल्व सॉल्ट है वो पीछे छूट जाते हैं। देन आफ्टर hydrothermal solutions, hot subsurface water that contain dissolved minerals crystallize out of the solution to fill fractures called veins। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से जो रिमेन होता है वो जो मैग्मा होता है उसकी गर्मी की वजह से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड दिस इज़ हाउ द मिनरल और फॉर्म। इस तरह से मिनरल बनते हैं।
So the matter which is formed due to inorganic process and has a certain chemical composition is called a mineral. Chemical composition उसके अंदर होना चाहिए. This is a result of abiotic process which took place in the interior of the earth since the infinite time. Infinite time यानी बहुत लंबा time. The solid, liquid or gaseous matter which is formed due to specific abiotic process within the rocks in the interior of the earth has a certain chemical composition and a homogeneous constitution and specific atomic structure is called mineral. तो ये mineral की पूरी definition है. Iron, manganese, gold, silver, etc. are solid minerals. Mercury, petroleum, etc. are liquid minerals. And natural gas is included as a gaseous mineral. The type of mineral that are available from the interior of the earth depends on how the crust of the earth originate. तो मिनरल कौन से टाइप का होगा वो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बना हुआ है. तो बेसिकली मिनरल के बारे में आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो. अगर मिनरल को डिवाइड किया जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल हम देखेंगे आगे वाला पॉइंट. पर अगर मिनरल की अगर हम बात करें तो कौन से मिनरल है जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेट्रा आर फाउंड इन इग्नोस रॉक्स. तो इग्नोस रॉक से अगर जहाँ पे लैंड फॉर्म होगा वहाँ से हमें आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड और सिल्वर मिल सकता है. डायमंड आर फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो जिस रॉक जो इग्नोस रॉक है वो उसका फॉर्म चेंज करेगा ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस एंड फैक्टर्स दैन इट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स. और इस तरह के रॉक्स में से हमें डायमंड्स मिलते हैं. अब मिनरल्स का क्लासिफिकेशन हम करें तो minerals are classified into 3 category: metallic mineral, non-metallic mineral and mineral used as energy resource. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ferrous containing iron, for example मेटालिक में अगर हम डिवाइड करें तो प्रेशियस मेटालिक मिनरल जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम. लाइट मेटालिक मिनरल मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टाइटेनियम. मिनरल यूज फॉर कॉमन पर्पस आयरन, कॉपर, लीड, जिंक, टीन, निकल. एंड मिनरल्स यूज एज एलॉयज. एलॉयज मीन्स मिक्सचर ऑफ द मेटल. क्रोमियम, मैंगनीज, टंगस्टन एंड वेनेडियम. तो ये उसके अलग अलग टाइप है. यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है फेरियस, तो वो क्या है वो देख लेते हैं. So ferrous minerals account for about 3/4 of the total value of the production of metallic minerals. They provide a strong base for the development of metallurgical industries. Two type of ferrous minerals are iron ore and manganese. तो जो बेस स्ट्रॉन्ग बनाने में यूज़ होता है वो फेरियस मिनरल है. नॉन मेटालिक अगर हम बात करें तो नॉन मेटालिक में लाइमस्टोन, चॉक, एस्बेस्टस, माइका, फ्लोस्फर, जिप्सम, सल्फर, डायमंड ये नॉन मेटालिक हैं. और एनर्जी रिसोर्स में अगर हम बात करें तो कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस और आज के डेट में तो यूरेनियम और थोरियम ये भी एनर्जी प्रोड्यूस में हमें यूज़फुल होते हैं. अब यहाँ पे हम एक एक मिनरल के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे. तो सब फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आयरन और. तो ये आयरन है जो आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. आयरन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. इट इज़ यूज वेरी वाइडली इन द मेकिंग ऑफ स्मॉल पिन्स टू लार्ज मशीन्स, कार्स, ट्रक्स, शिप्स, railway, bridges, buildings and weapons. It is cheaper, strong and durable. It is easily available in most of the countries. It has a virtue to mix with other minerals, hence it is considered to be an important mineral.
तो इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये कोई भी दूसरे मेटल है उसके साथ मिल सकता है, इसलिए ये ज़्यादातर यूज़ होता है और ये बल्कि हर एक कंट्री में इजीली अवेलेबल है और ये चीप भी है और ड्यूरेबल भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो अभी मैंने बोला कि आयरन में ऐसी क्वालिटी है कि वो कोई भी मेटल के साथ में इजीली मिक्स हो जाता है, इसलिए ये ज़्यादा यूज़फुल है और इजीली अवेलेबल भी है। तो इसका यूज़ अच्छे से होता है। अब आज की डेट में आप कोई भी चीज़ देख लो, वहाँ पे आयरन का यूज़ होता ही है। ट्रेन ले लो या ब्रिज ले लो या बिल्डिंग बनाने के लिए कहीं ना कुछ तो आयरन की यूज़ होती ही है। Iron is found in impure condition, so it is mixed with coke and lime and heated in large furnaces for refining. तो आयरन जो है वो हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है, वो इम्प्योर कंडीशन में मिलता है, इसलिए उसको प्योर करने के लिए कॉक के बारे में ये जब हम पेट्रोलियम की बात करेंगे तब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और लाइम के साथ में उसको मिक्स करके उसको गर्म किया जाता है, फिर उसको रिफ़ाइन करके हमें जो इम्प्योरिटीज़ दूर निकल जाती है और जो प्योर आयरन मिलता है, द प्योर आयरन थस ऑब्टेन इज़ नॉन एज अ पिग आयरन। तो जो प्योर आयरन हमें मिलता है उसको हम पिग आयरन बोलते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आयरन और फाउंड इन इंडिया: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट एंड सिडेराइट। तो ये 4 अलग अलग टाइप के आयरन की क्वालिटी है जो एग्ज़ाम में एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ सकता है। मैक्सिमम आयरन और इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कर्नाटका स्टेट इन इंडिया। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश आर अदर प्रोड्यूसर्स रिस्पेक्टिवली। Besides, iron ore is also found in Goa, Rajasthan, Tamil Nadu, Maharashtra, Madhya Pradesh, Kerala, उत्तर प्रदेश एंड आसाम स्टेट। तो इनमें से कोई भी एक मैप वर्क में आ सकता है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ द आयरन ओर इन इंडिया। तो ये प्लेसेस आपको याद रखने हैं। सेकंड जो है वो आता है मैंगनीज। तो मैंगनीज का काम क्या है, आप यहाँ पे मैंगनीज को भी देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह का वो दिखता है। मैंगनीज इज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरोम मैंगनीज एलॉय यानी जो अभी मैंने बोला 2 अलग अलग मेटल को मिक्स करके जो थर्ड मेटल फॉर्म होती है उसको बोलते हैं एलॉय। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मिनरल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इट इज़ मेनली यूज टू मेक स्टील फ्रॉम आयरन, क्योंकि आयरन के साथ इसको मिक्स किया जाता है और उसमें से स्टील बनता है जिसको हम स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, जिसके ऊपर कोई भी स्टेन नहीं लगता है। इट्स अदर यूजेस आर इन केमिकल इंडस्ट्रीज सच एज ब्लीचिंग पाउडर, insecticides, dry battery cells and tiles. It is also useful in leather industry, glass industry, matchbox industry, photography, china clay utensils and colored bricks. The rails made out of steel and rods becomes more flexible and strong when manganese is mixed with it. तो जो भी रेल हम पटरी बनाते हैं अगर वो मैंगनीज मिक्स करके बनाई जाए तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्टील इज़ यूज इन द मशीन्स टू ब्रेक रॉक्स एंड ऑल्सो इन ग्राइंडिंग मशीन्स। तो मैंगनीज का बहुत यूज़ है। मैंगनीज इंडिया में कहाँ पे मिलता है, तो ओडिशा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गोवा कैन बी काउंटेड एज मेजर स्टेट्स ऑफ मैंगनीज प्रोड्यूसर्स। बिसाइड्स मैंगनीज इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान एंड गुजरात स्टेट। तो ये सभी स्टेट है जहाँ से मैंगनीज मिलता है। ओडिशा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज ओर्स इन इंडिया।
It accounted for 1/3 of the country's total production in 2000-2001. नेक्स्ट है कॉपर, जो सबसे पहले मेटल जो थी वो एंशियंट जो लोग थे उनको मिली थी. Copper is used since primitive times. This was the first mineral used by man. It is more important because of its mixing property. It forms bell metal when mixed with tin and makes brass when mixed with zinc. It is used बेल मेटल मीन्स हॉलो मेटल जिसको बोलते हैं, जो इजीली बैंड हो सकता है या कुछ उसको मॉडिफाई करना है. तो इट इज़ यूज मोस्टली इन द मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर्स. It is good conductor of electricity. It is also used in insecticides, explosive, colored glass, coins and in printing. तो अगर एंशियंट टाइम की बात करें, एंशियंट सिविलाइजेशन की, तो वहाँ पे कॉपर कॉइन्स के बारे में हमने सुना ही है. तो इस तरह से भी ये यूज़ होती थी. हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उसके अंदर कॉपर यूज़ होता है. Copper is produced mainly in Jharkhand, Madhya Pradesh and Rajasthan states in India. Sikkim and Andhra Pradesh also produce it. Copper is also found in Bihar, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Himachal Pradesh and Uttarakhand state. तो ये कॉपर है जो आपने ऑलमोस्ट देखा ही होगा. अब हम बात करते हैं बॉक्साइट की. तो ये आपने नहीं देखा होगा. तो ये इस तरह का दिखता है. दिस इज़ एन एल्यूमिनियम और. इट वॉज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम एट लेस्बक्स इन 1921 इन फ्रांस. एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइट. एल्यूमिनियम जो है वो इस बॉक्साइट में से मिलता है. इट इज़ यूजफुल ड्यू टू इट्स स्पेशल प्रॉपर्टीज़. इट इज़ वेरी लाइट इन वेट. इसलिए जितने भी एरोप्लेन्स है, स्पेस शटल है, उनकी जो बॉडी होती है, आउटर बॉडी, वो एल्यूमिनियम से बनी होती है. इट इज़ वेरी लाइट इन वेट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रस्ट फ्री एंड इजीली डेक्यूटाइल, यानी जो इजीली ख़राब नहीं होता है वो. इट इज़ सॉरी, ड्यूक्टाइल मीन्स जो इजीली एबल टू बी शेप, यानी उसको कोई भी शेप देना हो तो वो इजीली दे सकते हैं. इट इज़ वाइडली यूज इन द मेकिंग ऑफ डोमेस्टिक उटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, कलर्स एंड इन शिप बिल्डिंग. तो स्टार्टिंग में जब स्टेनलेस स्टील नहीं था, तो आज की डेट में भी आपके घर में अगर किचन एसेसरीज़ में आप देखोगे तो बहुत सारे एल्यूमिनियम्स के वेसल्स यूज़ होते हैं. तो पहले एल्यूमिनियम के वेसल्स यूज़ होते थे. Bauxite is obtained from Odisha, Chhattisgarh, Maharashtra, Jharkhand and Gujarat. This mineral is found in the geological structure of Deccan Trap, yani South India, Ranchi in Jharkhand and Jamnagar, Bhavnagar, Junagadh, Amreli, Surat and Sabarkantha districts in Gujarat produce bauxite. तो ये सब जगह पे बॉक्साइट अवेलेबल है. ओडिशा वॉज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया with 34.97% of the country's total production in 2009-10. Panchpatmali deposit in Koraput district are the most important bauxite deposit in the state. तो ओडिशा ने सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस किया था. अब हम बात करते हैं माइका की. ये एक्चुअली में आपको, अगर आपके घर पे आयरन हो प्रेस करने के लिए कपड़े, तो उसके अंदर आप ओपन करोगे तो ये यूज़ होता है. ऐसा एक शाइनी मिनरल है ये, इस तरह से शाइन होता है. ये देखिए. इंडिया ranks first in the world in mica production. It is fire resistant and a bad conductor of electricity. So it is used in making electrical goods such as electric motors, dynamo, radio, telephone, cars, steamers, etc. तो कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है, माइका है वो बैड कंडक्टर है.
गुजरात इंडिया में कहाँ पे ये अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ माइका इन इंडिया. Mica is also found in Karnataka, West Bengal, and Tamil Nadu. There is a large reserve of muscovite type of mica found in India. तो ये muscovite टाइप जो है वो इस तरह से है, यानी पूरा शाइनिंग वाला. ये देखिए इस तरह से ये मस्कोविट माइका, ये एक टाइप उसका इस तरह का भी होता है. तो ये है माइका. अब नेक्स्ट है वो है लीड. तो ये लीड इस तरह से देखते हैं और यहाँ पे ये है उसकी माइन. इस तरह की माइन होती है. द लीड और इज कॉल्ड गैलेना. इट इज़ सॉफ्ट एंड हैवी इन वेट. इट इज़ यूज टू मेक एलोइज, इलेक्ट्रिक वायर्स, कलर्स, weapons, glass, rubber and storage battery. In India, lead is available in Rajasthan, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. It is also found in West Bengal, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Odisha, Maharashtra, Meghalaya and Sikkim states. Even though mica is produced in sufficient quantity, our demands are not met with, so it has to be imported. तो माइका जो एबेंडेंट क्वांटिटी में, अरे सॉरी, लीड जो है एबेंडेंट, माइका जो है वो हमारे यहाँ इनफ क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, इसलिए लीड जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं. अब इसके बाद है लाइमस्टोन. ये है लाइमस्टोन के इस तरह से वो मिलते हैं. इसमें लाइमस्टोन में भी अलग अलग आते हैं, वाइट और ये सब. लाइमस्टोन इज़ यूज इन लार्ज क्वांटिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट. सीमेंट बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. Besides that, it is also used for iron melting, chemical industries, soda ash, soap, color chemicals, building construction, paper and in sugar refining. तो ये बाकी जो मिनरल्स हैं उनको रिफाइन करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है. आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु प्रोड्यूस अबाउट 70% ऑफ लाइमस्टोन ऑफ द कंट्री. Besides this, Chhattisgarh, Karnataka, Maharashtra, Himachal Pradesh are other states producing limestone. तो लाइमस्टोन इंडिया में ये सब जगह पे मिलता है. इन गुजरात, जामनगर, कच्छ, अमरेली एंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट आर मेजर limestone producing districts. Other districts which also have limestone reserves are Banaskantha, Mehsana, સાબરકાંઠા, વડોદરા, પંચમહાલ, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, ભાવનગર and રાજકોટ. The rocks in Jamnagar districts contain about 97% of lime content. तो जामनगर डिस्ट्रिक्ट के जो रॉक्स है उसके अंदर 97% तक लाइम आपको मिल जाएगा. तो यह है मेटालिक और मिनरल्स. अब हम बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में. तो मिनरल्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स, जिसका पावर रिसोर्स भी बोला जाता है. तो पावर रिसोर्सेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. कोल, petroleum, natural gas, hydel power and nuclear power are some of the important power resources. The other power resources are wind energy, tidal energy, geothermal energy, solar energy and biogas. एनर्जी रिसोर्स, तो जिसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी रिसोर्स है. एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़. इट इज़ नीड टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट, टू प्रोपल व्हीकल्स एंड टू ड्राइव मशीनरीज इन इंडस्ट्रीज. अब अगर ये एनर्जी रिसोर्स हमें नहीं मिलते तो ये जो आप डेवलपमेंट अभी देख रहे हो वो नहीं होता. आज भी हम प्रिमिटिव लाइफ ही स्पेंड कर रहे होते. एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. Energy resource can be classified as conventional and non-conventional resources. Conventional resources include firewood, cattle dung, cake, coal, petroleum, natural gas and electricity.
Non-conventional sources include solar, wind, tidal, geothermal, biogas, and atomic energy. Firewood and kettle dung cake are most common in rural India. तो जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है तो वहाँ पे आज की डेट में भी फायरवुड और केटल डग को ही एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है. अब ये क्या है उसके बारे में हम जो जो डिस्कस करने वाले हैं वो पार्ट 2 में करेंगे. जितने भी मिनरल्स है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट you can text me and ask your question. Till then, stay home, stay safe. God bless you. Thank you very much.